جہاں جہاں بھی یہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہاں طلاق اور خلا کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نئے شادی شدہ جو شادیاں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دے گا؟ کیونکہ شادی کی تیاری 1 سال پہلے کرتے ہیں، لیکن جو حقائق کی بات آتی ہے، حقوق کی بات آتی ہے، اس کے بارے میں ان لوگوں کو کیا پیغام؟ تو ان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے شادی کرنے سے پہلے ہماری کلاس اٹینڈ کریں۔ شادی سے پہلے 20-22 دن کا کورس ہوتا ہے، کم سے کم 4 گھنٹے تو 50 سال کے سفر کے لیے ضرور یہ دیں۔ اگر یہ 4 گھنٹے بیٹھ کر دیتے ہیں تو 50 سالہ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہیلو ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 4۔ کار خیر فاؤنڈیشن کی جانب سے مسجد اکبری کی انتظامیہ کی نگرانی میں ایک نہایت اہم اور مفید ازواجی رہنمائی یعنی کہ میرج کونسلنگ کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا 3 اگست 2025 اتوار کو۔ پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ نکاح سے پہلے اور بعد کی رہنمائی، ازواجی زندگی میں درپیش مسائل کا حل، ماہر اسکالرز اور تجربہ کار کونسلرز کا خطابات، سوال و جواب کا بھی سیشن رکھا گیا تھا۔ یہ پروگرام نوجوان والدین، شادی شدہ افراد اور آئندہ نکاح کرنے والوں کے لیے نہایت مفید تھا۔ یہ پروگرام کی رہنمائی حافظ و قاری شعیب احمد صاحب اور مولانا سید حسین صاحب نے فرمائی۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ ہماری اکبری مسجد کی کمیٹی کے تعلق سے بڑے عزائم ہوئے، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، بڑی جدوجہد ہو رہی۔ ایسے کار خیر کے کئی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بہت اونچا کام، بڑا کام کار خیر فاؤنڈیشن کے تعلق سے یہ پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ماشاءاللہ ہر اتوار کو پورے بنگلور میں الگ الگ علاقوں میں پری میرج کاؤنسلنگ کا پروگرام بنا ہوا ہے۔ پہلی اتوار کو یہاں اکبری مسجد میں، دوسری اتوار کو گلوبل اسکول میسور روڈ میں، تیسری اتوار کو عمر فاروق فرسٹ کلاس ویلسن گارڈن میں، چوتھی اتوار کو اشرفیہ مسجد اشرفیہ امبیڈکر کالج کے پاس۔ یہاں سارے بنگلور میں اعلانات کر کر وہاں جمع کر کے لوگوں کو جو ہے پری میرج پر بات کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ میرج بھی اگر ضرورت پڑے تو ان کے ذریعے سے فون آتی۔ فونا میں سے ہمیں جو ہے لڑکی کا نمبر، ہمارے پاس لیڈی کاؤنسلرس ہیں، ان کو فونا میں لیڈی کاؤنسلرس کو ہمیں نمبر ڈالتی، انہوں فون میں سے گھر بیٹھے سے ان کا ذہن بنا کو بات کرتے۔ تو ماشاءاللہ اس سے بہت مسائل حل ہو گئے۔ یہاں سے بیٹھ کر کینیڈا میں مسائل حل کریں۔ تو یہ پوسٹ میرج کا بھی ماشاءاللہ کام بڑی اچھی طریقے سے ہو رہا ہے، اور پری میرج کا جو ہے ایسے پروگراموں میں پری میرج کا بھی کام کرتے ہیں۔ کس طرح کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ کون سے کیس لیتے ہیں؟ پری میرج میں ہم پریزنٹیشن کے ذریعے سے 27 سلیٹس بنا کر ہیں، وہ 27 سلیٹس اگر جو ہے سامنے آ جاتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ پری میرج میں 27 سلیٹ بتاتے ہیں، یہی سلیٹس کو پوسٹ میرج میں بتاتے ہیں تو سامنے والا اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ درست ہو جاتا ہے۔ اسے کیا بھی مجمع میں بیٹھ کر اسے مجمع میں منانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، خالی اسباق اسے بٹھا کر سمجھا ڈالے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ اس طریقے سے خود بخود مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے؟ کیسے معلومات ہوتے ہیں یا وہ لوگ آتے ہیں؟ بعض کس لوگ طرح سے تو معلومات؟ ہم نہ فون کرتی۔ اب یہ تشہیر کا جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اب یہ پورے بنگلور شہر میں، کرناٹک میں، بلکہ پورے ملک میں اس کی تشہیر ہوگی۔ تب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہ میرج کے پر جو ہے پوسٹ میرج پر کام کرنے بول کر ڈائریکٹ فون آتی، ڈائریکٹ فون آئے تو ہمیں فون پہنچ ان کو جو ہے بات کر کو ان کے مسائل کو حل کر۔ تقریباً کتنے سالوں سے 3 سالوں سے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب تک کے کتنی تعداد میں؟ اب تک 100-200 تو ہمارے جو ہے کاؤنسلنگ میں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ یہ دکھائے ہیں، یہ پریزنٹیشن ہمارا اب تک جو ہے تقریباً 5000 آدمیاں جو ہے ہمارا یہ پریزنٹیشن دیکھ چکے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی یہ بات جا رہی ہے، وہاں کے علماء کرام، مفتیان کرام جو اس کنسپٹ پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے طریقے کو لے کر کام کرنا چاہ رہے ہیں،
और लाइव बताओ करके बोल रही हूँ। आपका तजुर्बा क्या कहता है, कहाँ गलती होती है जो यहाँ तक ये मामला पहुँचता है? ये जो गलती जो होती है ये मालूमात के हकूक़ के नामालूम होने की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें होती हैं। हक़ क्या है मालूमिश नहीं, शौहर के हकूक़ क्या हैं शौहर को मालूम नहीं, बीवी को मालूम नहीं, बीवी के क्या हकूक़ हैं शौहर को मालूम नहीं। हकूक़ अगर मालूम हो जाते हैं तो मसला वहाँ का वहाँ जो है क्लियर हो जाता है। नए शादीशुदा जो शादियाँ होते हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि शादी की तैयारी 1 साल पहले करते हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ की बात आती है, हुकूक़ की बात आती है, उसके बारे में ही नहीं होता। उन लोगों को क्या पैगाम? तो उनसे हम ये चाहते हैं कि वो जो है शादी करने से पहले हमारी क्लास अटेंड करें। शादी से पहले 20-22 दिन का कोर्स होता है, या कम से कम 4 घंटे तो 50 साल के सफ़र के लिए ज़रूर ये दें। अगर ये 4 घंटे बैठ कर देते हैं तो 50 साला ज़िंदगी में खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। और ये हमने जो है सारे दुनिया में जहाँ जहाँ भी काउंसलिंग हो रही है, बहुत से मकामात पर 15 साल से 20 साल से हो रही है, बनफ़्से नफीस हमसे जाकर मुलाकात करके उनकी क्लासों को अटेंड करके सारे चीज़ें और उस तजुर्बात की रोशनी में हमने मालूम किया है कि जहाँ जहाँ भी ये काउंसलिंग हो रही है वहाँ तलाक़ और खुला की नौबत ही नहीं आती। ये क्लासेस के क्या टाइमिंग है जो नए शादीशुदा के लिए तरबियत की? अक्सर क्या होता है हमें फजर के बाद इनको जो है बुलाकर जो है अकेले अकेले बुलाकर उनको करते हैं, और ऐसा इज्तिमाई ऐसा ऐलानात करके इतवार को एक दिन जो है इज्तिमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी मस्जिद या मोहल्ले में ऐसा प्रोग्राम अगर मुनाकिद करना है तो कैसे कांटेक्ट करें आप? खाली उनकी जगह होगी, पूरा निज़ाम हमें करेंगे। खाली उनकी जगह यहाँ करना है अगर को बोल दिए तो हमें हमारे पूरे जो है औजार के साथ हमारे आकर हम पूरे जो है पूरी काउंसलिंग का क्या है कैसा करना है पूरा कर कर आएंगे। जिसे करने का इरादा है वो अकबरी मस्जिद आ गई। हाँ, अकबरी मस्जिद कांटेक्ट है, कैसे? कांटेक्ट हमारे नंबर पर करें, हज़रत के नंबर पर करें। हमारी टीम जो है उसमें कुछ लायर हजरात हैं, उनसे भी काम कर सकते हैं। हमारी इस मस्जिद के अंडर में बहुत से रिफाही कामों की हमें जो है अज़ाइम किए हैं। उसमें हमारे मदरसे का एक जामिया है, जामिया काशिफुल उलूम, माशाल्लाह बहुत दूर तक इनके बच्चे जो यहाँ से पढ़कर जो फारिगीन जाकर बड़ा नाम रोशन किए हैं, और फिर ट्यूशन वगैरह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं हम। अब ये जो माइनॉरिटी के जो स्कीम्स हैं, ये पूरे स्कीम्स उम्मत तक कैसे पहुँचे, उसके लिए बाकायदा एक ऑफिस रेडी करके उसमें बाकायदा एक अच्छे जो है नौजवान को अच्छी तनख्वाह देकर बिठाना चाहते हैं, ताकि जितने भी माइनॉरिटीज़ के जितने भी जो है स्कीमें हैं वो पूरे वो जाने और हमारे महल्ले में इस चीज़ को आम करें, इसकी भी कोशिश हो रही है। और यहाँ सर्वे का काम भी करना चाह रहे हैं हम। सर्वे के काम के ज़रिए से पूरे महल्ले में सर्वे हो जाए तो फिर कितने मालदार हैं, कितने गरीब हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं, कितने बेवा हैं और कितने तलाक़शुदा हैं, इन सारों का जो है हमारे पास फिगर आ जाएगा। इस पर हम बैठकर जो है किस तरीक़े से इसको दूर करना। माशाल्लाह इस महल्ले में बड़े मुखिर हज़रात हैं, अपना जान माल लगाना चाहते हैं। ये हज़रात भी आगे आए हैं माशाल्लाह। ख़ुद हमारे कमेटी के सदर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच रखते हैं, अपना जान माल हमेशा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे आपका नाम? मेरा नाम सैयद हुसैन अहमद है। क्या है मस्जिद? मस्जिद अकबरी के मैं भी जो है कमेटी में एक अदना सा खादिम हूँ। हमारे मदरसे के कमेटी के मदरसे के सेक्रेटरी साहब हैं, 30 साल से खिदमत कर रहे हैं मदरसे की। माशाल्लाह माहाना 7 लाख रुपए खर्च आता है। माशाल्लाह वो बड़ी क़ुरबानी देकर ये मदरसे को भी जो है चला रहे हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब इस मस्जिद के अनस साहब हैं, माशाल्लाह इनकी भी बड़ी फ़िक्रें हैं इसमें, इन सारे रिफाई कामों में। हमारे मौलाना जो है हमारे इस कार खैर फाउंडेशन के सदर हैं। ये कार खैर फाउंडेशन का काम जो है ना, ये बहुत उम्दा काम है। ये नीलसंदर की मस्जिद अकबरी से जो शुरू करें हमारे हुसैन साहब को, इंशाल्लाह ये हर मोहल्ले में हर मस्जिद में जाना, हर एक जगह जाना है। ये खैर का काम क्या है बोले तो फितने फसाद से बचाना। आज बात बात में मियाँ बीवी के बारे में, सास ससुरा के बारे में जो
परेशानियां हो रही, वो शादी के पहले उसे क्लियर कर को एक अच्छी जिंदगी काउंसलिंग के जरिए से जो कार खैर का काम जो शुरू करी, ये बहुत बड़ा काम है। ये अल्लाह इनको आगे बढ़ेंदे और अच्छे से अच्छा करेंदे। इसके साथ ही साथ हमें फिक्र करना हर एक चीज़ की, हर एक हमारे मुसलमान की जो हालत से गुजर रही, हमें ये पंचायत से, फिसने फसाद से, काउंसलिंग के थ्रू इन्हों जो मिलाने का काम कर रही ना कार खैर के जरिए से, ये बहुत उम्दा काम है। मैं दुआ करती हूँ इनको इसमें कामयाबी दे और हर मोहल्ले हर मस्जिद में काम होना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कार खैर फाउंडेशन शुरू होकर तकरीबन 3 साल हुआ। 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ रवाना हुआ है और 3 साल से हमें एक ही बैतुल माल, शबाब बैतुल माल के नाम से एक बैतुल माल है, जहाँ इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। तकरीबन 15, 17, 20 ऐसा होते हैं। 3 साल के उनकी इज्तिमाई शादियों में मैरिज काउंसलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस काउंसलिंग के सिलसिले में तमिलनाडु का 2 बार सफ़र किया है हमें, एक कोयम्बतूर का, एक पल्लापट्टी का। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कोयम्बतूर वाले तो बहुत मसरूर हुए इस चीज़ से और बहुत खुश हुए कि इतना अच्छा काम है ये, हम सबको करना चाहिए बोलकर वो सब लोग सराहे। उसके अलावा शहर बेंगलुरु के अंदर भी कई मकामात पर हम इस काम को अंजाम दिए हैं। अब हमारा इरादा ये है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर महीने की पहली इतवार को मस्जिद अकबरी में मैरिज काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा जाए और दूसरी इतवार को बाबूजी नगर में एक स्कूल है, वही मिल्लत स्कूल वाले उन्होंने अपनी तरफ से ये किए हैं, तो वहाँ होगा इंशाअल्लाह। और तीसरी इतवार को मस्जिद उमर फारूक फर्स्ट क्लास विल्सन गार्डन में इंशाअल्लाह होगा। अशफिया मस्जिद जो शाहपुर रोड में है, उस मस्जिद वालों से बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह हर महीने की आखिरी इतवार को वहाँ हमारा प्रोग्राम होगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से। ये घाटी तो ज़रा कठिन है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसमें जुड़कर हिम्मत के साथ और पूरी इस्तिक़लाल के साथ इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे इस कार खैर फाउंडेशन के रूह रवाही हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मद्दुज़िल्लुहुल आली जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तलाक और खुले के ज़रिए से जो ख़ानदान बिछड़ रहे हैं और उनके अंदर दरारें पैदा हो रहे हैं, नफ़रत पैदा हो रही है, उसके अलावा लोगों का अदालतों का चक्कर काटना, पुलिस स्टेशनों तक ये बात जाना और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा फितना फसाद का जो सबब बन चुका है, हमारी ये कोशिश ये है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कार खैर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बढ़ाकर लोगों के अंदर शऊर और एहसास पैदा करें कि अल्लाह के करम से ये उम्मत मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इस उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म का इलाज दिया है। तो निकाह के बाद खुदा न खास्ता अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई फितना या फसाद पैदा हुआ, उसका इलाज भी कुरान और हदीस की रोशनी में है। तो हम सारे लोगों से मुतालबा करते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हों तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो कुरान और हदीस की तरफ मुतवज्जे हों, न कि अदालतों के चक्कर काटना या पुलिस स्टेशनों को जाना। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शेवा नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो कुछ कहा है और सुना है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।